چلوں گا. آج اس مسئلہ پر خدا نے مجھ نرجس کے ذریعہ سے آپ سے کلام کیا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا. جو شخصیت، جو ذات الہی شروع سے آگے ہے. جب کائنات میں کچھ نہ تھا، خدا موجود تھا، خدا سب سے آگے تھا. لیکن بڑی ہی ستم کی بات ہے کہ ہم نے جو ذات سب سے آگے تھی، ہم نے اس کو سب سے پیچھے کر دیا ہے. یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا، لیکن ہم خدا کو پچھلا درجہ دیتے ہیں. خدا کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چل کر تیرے راستوں کو ہموار کروں گا. اور یاد رکھیں، ہم جب دن کا آغاز کرتے ہیں، اگر دن کے آغاز میں ہی ہم اپنے خدا کو آگے رکھ لیں تو کتنا خوبصورت دن ہے. اس لیے یہ زبور جو ہے ہم گاتے ہیں صبح کو اٹھ کے، تڑکے میں تیرے ڈھونڈا یا رب میرے خدایا. یعنی خدا کی یہ مرضی ہے. آپ پریشانی میں ہیں، آپ دکھ میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں. داؤد نے جب یہ گیت گایا مصیبت میں تھے اور کہتا ہے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا. جی تڑکے آنکھ ہی نہ کھلے. ہاں، اب بہت سی زندگیاں ہوتی ہیں جو صبح اٹھتے ہی اپنے خدا کو اہمیت نہیں دیتی بلکہ کام کو اہمیت دیتی. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جڑے صبح نو اٹھنے پہلے کی پیندے نے چاہ پیندے نے. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جڑے صبح نو اٹھتے پہلے رب دا نام لیندے سگریٹاں پیندے نے. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو صبح نو اٹھتے پہلے بچیاں نو گالاں کڈتے نے تے پھر کوئی دوسرا کام کرتے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیوی بچیاں نہ بدتمیزی کرنی ہے. لیکن خدا یہ کلام کرتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا. جس شخصیت کو ہمیں آگے رکھنا ہے، جو شروع سے آگے ہے، ہم اس کو آگے نہیں رکھتے بلکہ ہم اس کو دوسرا درجہ دیتے. بلکہ دوسرے تو بھی تیسرا درجہ. کوئی تو خدا کو کوئی درجہ دیتا ہی نہیں. ہاں جی، جدو کوئی دکھ آیا، مصیبت آیا، پھر خدا کو یاد کرنا، پھر رونا، پھر خدا کو کہنا خدا تو تے جاننا ہے. ہاں جی، حالات خراب ہو جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پھر ہم خدا کو پہلا درجہ دیتے. لیکن جب ہمارے حالات اچھے ہوں، جب ہم خوشحال ہوں، جب ہمارے گھر کے معاملات، ہماری زندگی کے معاملات سب کچھ اچھا چلتا ہو، ہم خدا کو پہلا درجہ نہیں دیتے. پھر تو ساری اکھاں بھی نہیں کھلتی. ہم اپنے آپ کو اتنا تھکا لیتے ہیں، ہم اس قدر سست ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں نہیں تینوں تو پتا ہوئے کہ کتنا تو تھکے ہیں. لیکن خدا ہم سے یہ کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا. آپ دیکھ لیں کہ جب مقدس موسیٰ لاکھوں کی تعداد لوگوں کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے ہیں تو خدا ان کے آگے آگے چلا ہے، نہ کہ مقدس موسیٰ. بڑا لشکر ہے لیکن خدا آگ کا ستون بن کر ان کے آگے آگے چلا ہے. زور، طاقت، قدرت، معجزہ موسیٰ کی چھڑی میں، لاٹھی میں نہیں تھی بلکہ خدا آگے تھا. خدا اس کے آگے آگے چلا ہے. داؤد جولیت کی طرف بڑھا ہے تو اس وقت بھی خدا آگے بڑھا ہے، خدا آگے گیا ہے، خدا نے اس پر خوف طاری کیا ہے. ایک پتھر تے ایڈا بڑا جن مار دینا، ہاں جی، جس کو بڑا گمنڈ ہے، لیکن خدا داؤد کے آگے آگے چلا ہے. خدا نے اس کو گرے. ہم بھی اپنی لائف میں خدا کو اگلا درجہ دیں. ہم
ہر چیز میں خدا کو پہلا درجہ دیں. میں ایک جگہ پر ایک سیلون میں گیا تو وہاں پر اس بھائی نے ایک چھوٹا سا گدا رکھا ہوا تھا اور میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کسی چرچ نے آپ کو دیا ہے ڈونیشن کے لیے؟ تو کہنے لگا نہیں پادری صاحب, میں جب بھی شام کو گھر جاتا ہوں تو میں اپنی جتنی ارننگ ہوتی ہے, جتنی کمائی ہوتی ہے, میں پہلا درجہ خدا کو دیتا ہوں. میں اس میں سے جو ہے 10% نکال کر اسی وقت اس میں ڈال کے گھر جاتا ہوں. میں پھر جو اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر میں خدا کے گھر پہ دیتا ہوں. سو پہلا درجہ خدا کو دینا. خدا کہتا میں تیرے اگے اگے چلاں گا, اسی کہنے خدا تو پیچھے پیچھے آ. ہاں, وہ کہتا میں تیرے ناہموار راستوں کو میں سیدھا بناؤں گا. لیکن ہم جو ہے ہر چیز میں خدا کو پیچھے چھوڑتے. ایک میرے ساتھ حوالہ دیکھیں خروج کی کتاب میں سے, خروج 23 باب. اس کا 23 باب اور اس کی 20ویں آیت سے یہاں پر لکھا ہے, دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے. تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا, اسے ناراض نہ کرنا, کیونکہ وہ تمہاری خطا نہ بخشے گا, اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے. ہیلیلویا, اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے. یہ فرشتہ ہاجرہ کو ملتا ہے, یہ فرشتہ یشوع کو ملتا ہے, اور اب یہ فرشتہ جو ہے قوم بنی اسرائیل کے لیے خدا کہتا ہے تیرے آگے آگے چلے گا. یہ فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا, بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کا عکس ہے کہ وہ تیرے آگے آگے چلے گا. کیونکہ یشوع نے کہا کہ تو ہماری طرف ہے کہ دشمنوں کی طرف سے. اس نے کہا میں کیا ہوں جی, بتائیں بہنیں بتائیں, ہاں جی کیا ہوں؟ خداوند کے لشکروں کا سردار, خداوند کے لشکر کا سردار. اور کلام مقدس میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے کہا یہ تیرا نگہبان ہوگا, یہ تجھے اس جگہ پہنچا دے گا جو میں نے تیار کیا ہے. اور لکھا ہے تم اس کے آگے ہوشیار رہنا. شعار کا مطلب ہے یعنی اٹینشن, یعنی کہ توجہ دینا. شعریہ نہیں وہانی ہے نہیں, یہ وہ ہوشیار نہیں. اس کی انگلش ورژن میں کہا گیا ہے کہ میڈیٹیٹ کرنا, اٹینشن کرنا, یعنی غور کرنا, اس پر نگاہ رکھنا, ہوشیار رہنا, اس پر نگاہ رکھنا. جس طرح 10 کنواریاں ہوشیار رہی, انہوں نے اپنی کپیوں کا تیل رکھا. ہر وقت ہوشیار رہنا, تیار رہنا. وہ تمہارے آگے آگے چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا, میڈیٹیٹ کرنا, اس پر غور کرنا, اس کی باتوں پر غور کرنا. اور دوسری بات جو ہے اس کی بات ماننا. جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے, زمین پر بھی پوری ہو. اور یاد رکھنا خدا یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں.
हालेलुया। ये कलाम भेड़ों के लिए आवाज है। हालेलुया। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। जब कलाम हो रहा हो तो इनके अंदर के कान खुले हैं। कान पता है कितने ज्यादा खुले होते हैं लोगों के, आपको पता है? लोग शिकवा करते हैं कि जी मैं कभी सुनया वो तो मेरिया बख्तोइयां करता रहता है। होता है ऐसा? मैंने अपने कानों से सुना है कि फलां फलां बहन, फलां फलां भाई, फलां फलां रिश्तेदार मेरी बदख्वाही करते हैं, बदगोई करते हैं। अब बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये मेरे लिए गलत हो रहा है, लेकिन गलत उसने नहीं किया, गलत आपने किया। कैसे? आपने अपना कान उसको दे दिया है। गौर करना, तुसा जो कान नहीं उधर रखने ने, हाँ कान नहीं ला के उत्थे रखी रखना है कि ये जो कुछ भी बोले मैनू पता लग जाए। सही होता है कि नहीं होता? सीसीटीवी कैमरा देखे? सीसीटीवी ये कैमरे को मैं जब ऑटो कर देता हूँ तो ये खुद ब खुद ऐसे 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 नीचे ऊपर ऐसे ऐसे सब पासे नजर। हम अपना कान उतार कर बदगोइयों के लिए, बदख्वाहियों के लिए, ऐसी आवाजों के लिए, ऐसी बातों के लिए असि 24 घंटे कान उधर देती रखना। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। अगर आप कान ही ना दे उसको तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता लगे ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कर दी? तो उसकी बात को मानना। और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, लेकिन कान किधर गए ने भेड़ा दे? भेड़े जो है आजकल ज्यादातर इन्हां गल्लां ते कि मैं ते अपने कंनी सुनिया वे कान किधर देते? याद रखें, जब आपने इब्लीस को अपने कान दिए हैं तो फिर वो कान के जरिया से आपके दिमाग को कंट्रोल भी करेगा। सुनना हो सब साहब, जब आपने इब्लीस को अपना कान दे दिया, वो सारा दिन बदगोइयां ते बदख्वाइयां, मेरे लिए वो फलाना इंज कह रहा है, मेरे लिए फलाना इंज कह रहा है, मेरे लिए फलाना इंज कह रहा है। हाँ जी, वो कान दिता, रस्ता दिता, राह दिता, वो उधरों दी बढ़ गया। फिर उन्हें इधरों दी जाना ना कान च किथे गया? सीधा दिमाग ते। दिमाग ने फिर एहो जिहियां गल्लां तैयार कर दियां, मैं ते अगे ही कहनी सा, हाँ एहो जी मशीनरी घूमनी है। कान दिया, उसने आपके दिमाग को हैक कर दिया। और दिमाग ने क्या करना है? फिर आपकी आंखों को भी यूज करना है। हाँ बढ़िया किधरों दी? कान था नहीं, कान ने दिमाग को इस्तेमाल किया, दिमाग ने फिर आपकी आंखों को भी इस्तेमाल किया। मैं जरा देखा तो सही बुरा। हाँ आप हर उस बुरे काम को फिर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अखा इस्तेमाल हुई, सुनते जाना। पहला हमने कितों यूज किया? कान तो गया दिमाग से आंखों में, और फिर जब आंखों ने देखा तो फिर उसने आपकी जुबान को इस्तेमाल किया। और आपकी जुबान जो है उसके बारे में लिखा है ये एक शरारत का आलम है, एक चिगारी है। हाँ अज अग ला के रख देनी तो कहना तुहानू तो पता मैं तो कभी चंगी मंदी की नहीं। आपने देखा होगा ऐसे लोग, मैं ते ना किसी ना चंगी ते ना मंदी, तो पता मैं हो जी कोई गल्ला नहीं करता। काम किधर गया जी? सारा दिन दूजिया दी गल्लां ते ध्यान रखना, जिधर को जावे उधर जाना, कान उधर 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 उधर। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है।
अगर भेड़ होवे तो फिर ओदी ही आवाज सुननी। अगर भेड़ ने कान ही किसी और को दे दिया, आज ने चुगली मीटिंग मैं भी कभी करता सा, आज तो 15-20 साल पहले बैठ के देते बड़ा मजा आता सी। सारे रिश्तेदार भैन भरा बैठ के, मेरे वाइफ को पता है, इन्हों की सिस्टर आते, ओ सारी सिस्टर आते, बाजी हमने चुन चुन के हर फैमिली के बंदे के कीड़े कटने। हाँ बड़े असी कीड़े कटने एक दूजे दे, जे किसी की गल हाथ च आवे फिर असा छड्डे किसी को ले भी छड्ड के आवां पूरा। अच्छा मजेदार की गल है, जिदी जिदी असी गल करनी हो उन्होंने सकून ना सुते होना ते असी जागदे रहना, असी जाग जाग के बस तेनू की दसा मैं उन्दियां ते हरकतां तेनू मैं दसा ओदियां हरकतां कि तो सुता होवे होंदा कि होंदा सारी रात ना को असी पादरी छड़ना ना को असी किसी नू ना छड़ना। कि मैं देखिए मैं अपनी से बात कर रहा हूँ, मैं ये 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पता है मेरी वाइफ को हम बड़ा मजा आता था हमें ऐसी बात, फिर असी बड़ियां लंबियां लंबियां छड़ियां। हाँ वो बाजी आलवा भी आना नहीं करके फिर भी साडा क्या गल ये सच्ची गल है, ये भी साडा पार्टनर से भी। सो ये चीजें जो थी हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कानों को अपने कंट्रोल में किया। भाई जब मैंने खुदा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया, मैंने जब खुदा के कलाम पर गौर करना शुरू कर दिया, जब मैं कलाम ही सुनता रहता था तो फिर मेरा कान मेरे कंट्रोल में हो गया। जो कान कंट्रोल से आते फिर जुबान भी कंट्रोल से, दिमाग भी कंट्रोल से। हाँ लेकिन याद रखें, कान से अंदर गया, कान से उसने दिमाग को यूज किया, दिमाग से उसने आंखों को यूज किया, आंखों से उसने जुबान को इस्तेमाल किया। और लिखा है जो कुछ तेरे अंदर है वो ही बाहर आता है। अच्छे खजाने से अच्छी चीजें और बुरे खजाने से बुरी चीजें आपके पेट में दबी रहती हैं। सारी बातें आपके पास मोबाइल है, आप इधर उधर की बातों की बजाय आप कलाम को सुना करें। अपने कान अपने खुदावंद को दे दीजिए। कहता है इसको नाराज ना करना, होशियार रहना और उसकी बात को मानना। भाई खुदावंद दे फरिश्ते, इसलिए ये सारी चीजें हैं कि मैंने अपना नाम इसमें रखा है, वो नाम जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जो यीशु जैसा नाम हो। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, ख्वाह वो आसमानियों का हो ख्वाह वो जमीनियों का हो, सारे घुटने उसके आगे झुकेंगे, क्योंकि मैंने अपना नाम उसके अंदर रखा है। खुदा अपने नाम की गैरत रखता है। हालेलुया, ये कलाम कहता है वो अपने नाम की गैरत है। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे रास्तों को हमवार करूं। अगर आपकी जिंदगी में याद रखें, आपके रिश्तों में, आपके काम में, आपके हालात में, आपके घर में, आपकी जिंदगी के अज़वाजी हालात में, आपकी लाइफ में, आपके बच्चों में, आपके रिश्तेदारों फैमिलियों में अगर प्रॉब्लम है तो याद रखें आपने अभी तक अपने खुदावंद को आगे रखा ही नहीं। मैं ये दावे से बात कर सकता हूं, अगर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही तो फिर खुदा को आगे रखे ही नहीं, क्योंकि वो तो कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा तो तेरे रास्ते को हमवार करूंगा। फिर वो अगर आगे है ही नहीं तो रास्ते तो फिर ना हमवार होने। हाँ, मैं तेरे रास्तों को संवारूंगा, मैं ना हमवार टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधे करता लगा जाऊंगा।
याद रखना, कौम बनी इसराइल जब भी जाती थी, अहद का संदूक उनके आगे आगे चलता था। काहिन अहद के संदूक को यरदन में लेकर गए हैं, यरदन को उसने संभाल लिया है। उसकी हजूरी की ताकत मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो आगे चलता है तो फिर याद रखे वो आपके रास्तों को सीधा, रिश्तियां के मामला से कोई खलल खुलल पहले नहीं देता। हाँ जी, फिर क्या है, कान हमारे कंट्रोल में है। हम इधर उधर की बातों पर जब ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिमाग भी कंट्रोल से होगा, जो दिमाग कंट्रोल से होगा तो फिर जुबान भी कंट्रोल से होगी, जो जुबान कंट्रोल से होगी हमारा दिल भी हमारे कंट्रोल में होगा, क्योंकि दिल हिलेबाज और ला इलाज है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जब कंट्रोल कितो होया करना तो भेड़ां दे सिर ते तेल लाना इसी तरह जरूरी सी कि उन्हां दा सिर तर रहे ताकि कोई कीड़ा ना पैदा हो। हाँ जी, कीड़े मरते रहन, अगर कीड़ा कान च गया तो फिर भेड़ मर गई। तूने मेरे सर पर तेल डाला, मेरा प्याला लबरेज होता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद अपने आप को ऐसे भेड़ खुदावंद के आगे रख रहा हूं, तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा प्याला लबरेज होता है। आपको पता है यहूदा का कबीला आगे आगे चलता था, सारे कबीलों में से 12 कबीलों में से यहूदा का कबीला सबसे आगे इसलिए होता था, एक तो वो पूरे कबीलों की ताकत थी, क्योंकि उन्होंने कबीले के सारे आर्मी सन, फौजी सन, जंगजू सन। दूसरी अहम बात यह थी कि यहूदा का मतलब था प्रस्तुत करना, सिताइश करना। यहूदा आगे आगे चलाने का खुदा का मकसद था कि मेरी सिताइश, मेरी हमद, मेरी प्रस्तुत आगे चलेगी, चाहे अमूरी आए, कश्ती आए, हित्ती आए, ऊरी आए, अमोनी आए, कोई भी आए, तेरी जंग जो है मैं लड़ूंगा और फतह तुझे हासिल होगी। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे रास्तों को हमवार करूंगा। नए अहदनामे में हमें एक हवाला मिलता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, हालेलुया, इब्तिदा में, शुरू में कलाम था, वो कलाम मुजस्सम हुआ, वो सबसे आगे था। आजकल कलाम नू इन्ना कि पीछे कर दिता है, उन्होंने तोड़ मरोड़ दिता है। आजकल तो मार्केट दे विच इहो जिहे खादम आ गए ने। अफसोस के साथ ये मैं बात कहना चाहता हूँ, खादम आते हैं दुआ के लिए और वो अपने दिल की बातें लोगों के साथ शेयर करते हैं, कहते हैं मैंने तो तेरे लिए बड़े डॉलर देखे। खादम आते हैं, दुआ करते हैं, ना कि उनको कलाम सुनाते हैं, ना सच्चाई बताते हैं, बल्कि कहते हैं मैंने तेरे लिए डॉलर देखे। एक खादम आता है, वो कहता है मैंने तेरे लिए अमेरिका का वीजा देखा है। कोई खादम आता है तो वो घर में नौजवान बेटी के ऊपर अपनी गलत निगाह रखता है और उस बेटी पर निगाह रखते वो कहता है कि मेरे खुदा ने मुझे बताया है कि तू मेरे साथ शादी कर ताकि हम खुदा की खिदमत करें। कहता है वो ये लोग यर्मिया की मार्फत खुदा कलाम करता है, ये लोग अपने दिल के इल्हाम की बात करते हैं, ना कि मेरे मुंह की। अपने दिल के इल्हाम लोगों ने दस उसके तो कहते हैं साढ़े ना खुदा ने कलाम किया। मुझे ये पिछले दिनों में एक भाई ने बताया, उन्होंने कहा कि जवान बच्ची ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ ਜਿੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਮ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ये कैसी वेड़े है, ये कैसे जवाहे है जो अपने पेट की खातर, अपने अंदर की ख्वाहिशों के लिए, जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए ये काम कर रहे हैं, तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तेरे से वेखे बड़े डॉलर ने, तेरे अगे डॉलर, हाँ कलाम कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, वो कहता तेरे अगे डॉलर होंगे, हाँ
तेरे वास्ते अमरीका का वीजा लग गया, हाँ बच्चों को वर्ग ला रहे हैं। अपने अंदर परखने की रूह पैदा करें। खुदा से कहा मुझे परखने की रूह दे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे नाहमवार रास्तों को हमवार बनाऊंगा। कलाम मुकद्दस में हमें मरकज़ की इंजील में भी एक वाक़या मिलता है, जब लिखा है जहां पर शागिर्द जहाज में सवार थे, कश्ती में सवार थे, लेकिन यीशु पीछे सो रहा था। शागिर्द कितने सन आगे, तो यीशु पीछे सो रहे थे। एक बड़ी आंधी आई, एक बड़ा तूफान आया, कश्ती जहाज डूबने लगा, सारी जिंदगियां खतरे में पड़ गई। जब तक मामला ठीक चल रहे थे, यीशु पीछे चला है, यीशु सोया रहे पीछे, ठीक है। जब तक लहरों पर कश्ती सही चल रही है तो फिर यीशु, लेकिन जैसे ही तूफान आया, आंधी आई, आए उस्ताद, आए खुदावंद, आए मालिक, आए यीशु, फिर यीशु आगे आया। तो फिर जब यीशु आगे आया, हालेलुया, आंधियां भी थम गई, तूफान भी थम गए। जब पीछे था तो आंधियां तूफान, हाय हाय, जदों अगे आया तो फिर सारा कुछ थम गया। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे नाहमवार रास्तों को सीधा बनाऊंगा। मैं तुझे तेरी उस राह पर ले जाऊंगा जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। कहता खुदा ने फरिश्ते को नाराज ना करी, हाँ मेरे बेटे को नाराज ना करी। गौर करें इन बातों पर। आइए मेरे साथ एक और हवाला दे, कुलसियों का नाम पढ़ो, रसूल का खत, लास्ट में मोबाइल है तो निकाले जरा प्लीज। कुलसियों के नाम रसूल का खत, उसका पहला बाब मेरी नजर आ, उसकी 15वीं आयत। हालेलुया जी। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। जी जी आगे। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, यस, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, यस, सब चीजें उसी के वसीले और उसी के वास्ते पैदा हुई। आमीन, हालेलुया। सब चीजें उसी के वास्ते, वो इन सब चीजों से पहले थे। रियासतें, हुकूमतें, तख्त, बादशाहियां, इन सब से पहले वो मौजूद था। लेकिन हमने अपनी लाइफ में क्या किया हुआ जी? उसको अपने पीछे छोड़ दिया। हम जिंदगी में सारे कामों को अहमियत देते हैं, उनको आगे रखते हैं, लेकिन खुदा दे कामों, इसलिए मेरे जो लाइफ में बहुत से मामला खराब होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये मामला खराब कितने हुआ, क्योंकि हमने बार बार अपने खुदा को किधर रखा है जी? पीछे रखा है, और अपने काम को अहमियत दी है, अपनी लाइफ के सारे मामला को पहले दर्जे पर रखा है और खुदा को दूसरे दर्जे पर रखा है। इसलिए खुदा ने की हुक्म देता है, 10 हुक्म की जरूरी सी, मेरे सब्बत को क्या करना? ओए होए, हम तो सारे काम कर लेते थे। एक काम में लिखा है कि एक गठरी दी गांड जड़ी ना, गांड वो भी नहीं तुझे खोल सकते। सब्बत तो इतनी सख्ती होती सी। खुदा कहता है कि बस उस दिन तुम काम नहीं करना,
सिर्फ मेरी इबादत हो, मुझे अव्वल दर्जा देना। आज तक वो बरकतें उन लोगों में कायम है। क्यों? अभी तक वो खुदावंद के इस हुक्म को मानते हैं। हम इस हुक्म से बहुत पीछे चले गए। पहला दर्जा किन्हों देना है? अपने खुदावंद को। अपनी लाइफ को याद रखे, हमेशा जो चीज खुदा की है वो खुदा को दे। उन्होंने पूछा कि कैसर को जजिया देना रवा है कि नहीं? उसने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। दुनिया के काम भी करने ते है ना, हाँ जी, वो कैसर है, जेड़ा कैसर का काम है करो। खुदा कहता मैं तुहानू मना नहीं करता। मेहनती खुदा को पसंद है, काम करने वाले खुदा को पसंद है। लेकिन खुदा ने, खुदा यीशु मसीह ने साथ ये बताया था जो खुदा का है वो खुदा को दो। जेड़ा खुदा का वक्त है वो खुदा को दियो। जेड़ा गवर्नमेंट हुकूमत घर के मामला कम्मा नहीं ना, मतलब सारी चीजें उन्होंने ना दे दो। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं, आंख को बंद करो।